Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful joy for us to be here together to worship the birth of our Lord Jesus Christ. और क्या ही आनंद की बात है हम सभी को यहाँ पर एक साथ आकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का। And what a joy for us to celebrate Christmas together. और क्या ही आनंद की बात है कि सभी एक साथ मिलकर हम क्रिसमस को मनाएंगे। We've had a very eventful year that has gone by. और यहाँ पर जो कुछ घटना जो हमारे बीच में हुई है, The year has been a lot of ups and downs. और ये जो साल था बहुत ही उतार और चढ़ाव का हुआ है। But it's so good that at the end of the year we can come and celebrate the birth of our Savior Jesus Christ. लेकिन ये बहुत ही आनंद की बात है कि इस साल के अंत में हम आए हैं एक साथ मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए। I'm also happy that each one of you are gathering in your own house churches. और मैं इस बात के लिए भी आनंदित हूँ कि आप सभी लोग आपके घर कलीसिया में एकत्रित हो रहे हैं। We are not in the same place. हम उसी स्थान पर नहीं है, But we are together. लेकिन हम साथ में हैं। So as we go through this worship, तो जैसे हम इस आराधना को हम करेंगे, I want you to feel the presence of God wherever you are. और मैं चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। God has been very good to each one of us. और परमेश्वर हम सभी के साथ बहुत भला रहा है। And I believe that God is going to bless our worship this morning. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी आराधना को आज की सुबह आशीषित करेंगे। I want to pray that we will not just go through the motions of doing a service, but that we'll really be filled with the joy that only Jesus gives us. और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सेवा जैसे चलती है उसी समान हमारी गति में हम ना चले, लेकिन सच में जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। There are two scriptures I want to read as we begin. और जैसे हम शुरुआत करते हैं मैं 2 वचनों को पढ़ूंगा। The first is a prophecy that God gave Isaiah. और पहला तो भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने यशायाह को दिया। That is in Isaiah chapter 7 and verse 14. और वो है यशायाह की 7 अध्याय वचन 14 में। And this is how it reads. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। The fulfillment of that particular prophecy is recorded in Matthew chapter 1. और ये जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है मत्ती के 1 अध्याय में। And I want us to read that passage also. और उस भाग को भी हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 1 verses 18 onwards. और हम पढ़ेंगे मत्ती के 1 अध्याय से 18 से लेकर। Says, now the birth of Jesus Christ took place in this way, when his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Emmanuel, God is with us. इमैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। And today, what a privilege for all of us to worship the birth of Jesus Christ together. और आज क्या ही सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं। We have a beautiful worship planned up. और हमारे लिए आराधना का बहुत अच्छा योजना बनाया गया है। And let's pray at this time that God will bless our coming together and worshiping Him. तो इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु आशीष दे हमारी आराधना में और हमारे एकत्रित होने में। I would ask you all to stand wherever you are. और मैं चाहूँगा कि आप सभी खड़े हो जाए, आप जहाँ पर भी हैं, And let's bow our heads in prayer. और प्रार्थना के लिए हमारे सर को झुकाएं। Our Father God, we thank you that you are our God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। And as our God, you really loved us. और प्रभु, आपने हमसे सच में प्रेम किया है। You did not want us to die in our sins. आपने नहीं चाहा कि हम हमारे पाप में मर जाए। And you planned for Jesus Christ to be born as a child, as a baby. और आपने योजना बनाया कि प्रभु यीशु मसीह एक जन्म ले, एक बालक के समान। And today, as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ, और जैसे आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, we thank you for bringing each one of us together in different places. हम धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को आपने अलग अलग जगह से एक जगह पर इकट्ठा किया। Thank you for the joy that you give us at Christmas. धन्यवाद देते हैं उस आनंद के लिए जो आप हमें क्रिसमस में देते हैं। And now we pray as we begin our service और हम प्रार्थना करते हैं जैसे हमारी सेवा हम शुरू करेंगे that you would be in our midst. कि आप हमारे बीच में हो। We would feel your presence, Emmanuel, God with us. हम आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे जो इमैनुएल हमारे साथ परमेश्वर है। So we commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। We commit the entire next time that we're going to spend together into your hands. और आगे का समय आपके हाथों में हम देते हैं। We pray, Lord, that you would be in our midst, you would bless us this evening hour. हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे बीच में हो और इस शाम को आप आशीषित करें। Thank you again for your goodness in our lives. धन्यवाद देते हैं फिर से आपकी भलाई के लिए हमारे जीवन All में। that we do now, let it bring glory to your name. अब हम जो कुछ करेंगे उससे आपके नाम को महिमा मिले। We pray, Lord, that you would bless us. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें आशीष दे। Thank you for hearing us, धन्यवाद हमारी सुनने के लिए, because we pray this in Jesus' name. क्योंकि हम ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, Amen. आमीन। As we remain standing, we're going to sing a few carols together. और जैसे हम खड़े ही हैं तो हम कुछ कैरल्स को गाएंगे। This is a good time for us to remember the birth of the Lord Jesus Christ. और हमारे लिए ये अच्छा समय है हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को याद करने So के as we लिए। worship Him together, I'm going to ask Kenneth and the worship team to lead us और जैसे in a हम- time of carols. जैसे हम आराधना करेंगे तो मैं कैनित और उनके झुंड से कहूँगा कि वो आए और हमें कैरल्स में चलाए। And then the other teams will also lead us in carols in Nepali, Marathi and Kannada. और बाकी के जो झुंड के लोग हैं वो भी हमें कैरल्स में चलाएंगे जो मराठी, कन्नाडा और नेपाली Now है। the best way you can enjoy this time और इस समय का आप अच्छा आनंद उठा सकते हैं by participating in it. इसमें भागीदार होते हुए। So this is not a performance. और ये कोई हम कार्यक्रम नहीं कर रहे This is हैं, a worship. ये आराधना है। So wherever you are, join us in this time of worship. आप जहाँ पर भी है आप आराधना की समय में हमारे साथ जुड़ जाए May God bless us. और परमेश्वर हमें आशीष दे। So over to Kenneth and the team. तो आगे का समय हम कैनित और उनके झुंड को देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. What better way to celebrate the birth of Christ than with carols? Let's sing this song together, Angels We Have Heard on High. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains filled with light, echoing their joyous strains. Oh,
jubilee, while your joyous strains prolong. What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ whose birth the angels sing. Come adore on bending knees Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a manger laid, whom the chorus of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. After Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is this one who has been born King of Jews? We saw his stars when it rose and have come to worship him." He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the stars they had seen, when it rose, went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the child, they were overjoyed. On coming to the mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gift of gold, frankincense, and myrrh. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व के कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उन जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारा को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुँह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। We'll sing this next song, Joy to the World.
Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. From fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more the sins and sorrows grow. No toils infest the ground. He comes to make His blessings flow. Far as the curse is found. Far as the curse is found. Far as the curse is found. He rules the world with truth and praise, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. खुशो खुदा बनाया है, उसको कबूल कर ले। एक जहाँ हर एक दिल मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे। खुशो मसीह बादशाह है, सब आदमी हर ज़ुबान, समुद्र भी मैदान पहाड़, गीत गाए खुशहाल, गीत गाए खुशहाल, गीत गाए खुशहाल। दुख और तकलीफ करता दूर, हटाता है गुनाह। गरीबी में वो देता नूर, और बरकत बीच बहार, और बरकत बीच बहार, और बरकत बीच बहार। रास्ता बाजी और सच्चाई से वो राज फैलाता है, और अपनी हुकूमत में वो प्यार दिखाता है, वो प्यार दिखाता है, वो प्यार दिखाता है। And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord showed around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause glory, joy, full for your people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is a Messiah, the Lord. This will be the sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in the manger." Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angels praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those who His favor rest." Then the angels had left them and gone into heaven. The shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen, they spread the word concerning that had been told and about this child, and all that they heard it was amazed and what the shepherds said to them. But the Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे।
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की स्तुति और महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए और गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और उनके चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बातें जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। We'll sing this next song, Away in the Manger. Shouting joy to the world. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Savior is born. It's Christmas, the bells are ringing, and I feel like shouting, joy to the world, joy to the world, joy to the world. It's Christmas time. This is a time where our Savior was born. He left the splendors of heaven and came on this earth for you and for me. So in this joyous time, let us celebrate together in oneness. क्यों ना हम झूमते हुए उस महान परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठाए इस गीतों के साथ. Why don't we sing this song together? हो आओ झूमे. Why don't we close our eyes? Heavenly Father, once again I thank you for this day, O Lord. Thank you, O Lord God, for enabling us that we could gather here, O Lord, and we could lift your name on high. Lord, it wasn't an easy decision, O Lord God, for you to send one and only begotten Son, O Lord. But that was your love for us, O Master. That one
Jesus that you had, O Lord God, even you have sent that for him, that for us, O Lord God. We thank you, O Lord God, for everything, O Lord. You truly are an awesome God, O Master. And thank you for that love you have bestowed on us, Master. Lord, I thank you, O Lord God, for your blessing and your grace which is always there with us, O Lord. Lord, this was the offering, O Lord God, and we believe that you have accepted it, O Lord God. Thank you so much once again, O Lord God, for your presence that is always there with us, O Master. Thank you for your love, O Lord God. Thank you for your unconditional love. You are an awesome God, O Lord God, and there is no one like you. Once again, we give the whole service in your hand, O Lord. You lead and you guide. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. I hope all of you are enjoying this time of carol singing. We will continue with the carols, and for all of us now, we're going to sing in languages. So we're going to have the Nepali team lead us in carols, followed by the Marathi team, followed by the Kannada team. So इस समय हम हमारे कैरल सिंगिंग कंटिन्यू करेंगे, और हम नेपाली में कैरल्स गाएंगे, उसके बाद मराठी, और उसके बाद कन्नड़ा में हम कैरल्स गाएंगे. मैं आपसे ये विनती करूँगा कि शायद आपको भाषा नहीं आता होगा, पर आप उनके साथ मिलकर आप भी आनंद मनाइए. जय मसीह. अभी हम एक नेपाली कैरल गीत को हम गाएंगे, और वो गीत इस प्रकार कहता है कि प्रभु के गीत को हम गाते जाइए और हंसते हुए उसके राज्य में हमें बढ़ना है, क्योंकि वह संसार में आया है हम पापियों की विनती को सुनने के लिए. तो इस सुसमाचार को हमें खुशी के साथ सारे जगह में फैलाना है. तो ये गीत इस प्रकार कहता है. अब हम इस गीत को हम गाएंगे. गाउँदै जाऊ प्रभुको महिमा, उनैको जन्म दिवसमा हाँस्दै बढौँ उनकै सेवामा, जगाउँदै नौलो भावना उनैको जन्म उनैको जन्म दिवसमा गाउँदै जाऊ प्रभुको महिमा, हाँस्दै बढौँ उनकै सेवामा. खुसीको यो सुसमाचार फैलाऊ है खुशीको यो सुसमाचार फैलाऊ है दिशै चार. आउनु भयो प्रभु संसारमा, निम्त्याऊ है उनलाई हृदयमा. आउनु भयो प्रभु संसारमा, निम्त्याऊ है उनलाई हृदयमा. उनैको जन्म दिवसमा, उनैको जन्म दिवसमा गाउँदै जाऊ प्रभुको महिमा, हाँस्दै बढौँ उनकै सेवामा. स्वर्ग राजको वैभव त्यागेर आए मानिस रूप लिएर. स्वर्ग राजको वैभव त्यागेर आए मानिस रूप लिएर. आउनु भयो प्रभु संसारमा, निम्त्याऊ है उनलाई हृदयमा.
निम्त्याउँदै उनलाई हृदयमा आउनुभयो प्रभु संसारमा निम्त्याउँदै उनलाई हृदयमा उनको जन्म दिवसमा उनको जन्म दिवसमा गाउँदै जाऊ प्रभुको महिमा हाँस्दै बढौ उनकै सेवामा हाँस्दै बढौ उनकै सेवामा हाँस्दै बढौ उनकै सेवामा धन्यवाद. जय ख्रिस्त सर्वांना. आज संध्याकाळच्या वेळेस जसं आपण जमलो आहोत ख्रिस्त जन्म साजरा करण्यासाठी मी मराठी मंडळीच्या वतीने तुम्हा सर्वांना नाताळाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. आता आम्ही एक गीत गाणार आहोत, पहा ख्रिस्त जन्मला. ख्रिस्त जन्मला जगद्गुरु ऐकला दूत त्यास स्तविती प्रभु राजा वर्णिती सारा मान द्या त्याला त्या सुबंध देवाला अवतार घेतिला बेथलेहेम जन्मला पहा ख्रिस्त जन्मला जगद्गुरु ऐकला शांती पृथ्वीवरी फार मानसा कृपा अपार आला ख्रिस्त द्यावया राष्ट्रांनो नमाया तो लोकात राहिला प्रेमी त्यासी वर्तिला तरी भिन्न त्याहुनी शुद्ध तो आचरणी पहा ख्रिस्त जन्मला जगद्गुरु ऐकला आला ख्रिस्त ताराया याहुद्यास स्तवया त्याने दुःख साहिली तोची यामचावारी पहा ख्रिस्त जन्मला जगद्गुरु ऐकला दूत त्यास स्तविती प्रभु राजा वर्णिती पहा ख्रिस्त जन्मला जगद्गुरु ऐकला. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आनंद पडोरा सुदर्शन नोडिಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಮೇಲೋಕದ
फिर से सभी को जय मसीह। ये भेंट का समय है, तो क्यों ना हम प्रभु के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे। Our God is a generous God and He expects His people to be generous like Him. तो क्यों ना हम ये गीतों के द्वारा उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप धो लिया, संतोष बढ़ ही रहा। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पुन्हा भरला। हालेलुया, यीशु मला वाचवे, माझे पाप धुले, आनंद पुन्हा भरला। संतोष उठते, संतोष उठते, संतोष उठते। हालेलुया, यीशु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಉठते। आनंद भरियो, आनंद भरियो, आनंद पूरो भरियो। हालेलुया, यीशु मला बचायो, मेरे पाप धुलियो, आनंद पूरो भरियो। Zechariah said this when the Lord had spoken to him and his child was born. John the Baptist was born. और जकरिया ने ये वचन को कहा जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ था। He said, "Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David." और फिर उसने कहा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। The reason why we celebrate Christmas and we rejoice at Christmas is because God gave His best to us. और हम क्रिसमस को क्यों मनाते हैं और इस दिन में हम आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस दिन अपना सबसे उत्तम दिया। God gave His only begotten Son. और परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। Today we've had an opportunity to give a little back to God. और हमें मौका मिला था कि हम परमेश्वर को फिर से कुछ थोड़ा सा दे सके। This is just a little of what God has given to us. और ये थोड़ा सा ही है जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें से। But what God expects of us is our lives. लेकिन परमेश्वर हमसे जो उम्मीद करता है वो हमारा जीवन है। So let's bow our heads now as we pray and thank God for His goodness to us. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की भलाई को हम मांगे। Our Father God, we thank you that you are a good God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। And we thank you that you love us so much. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। Thank you for sending your begotten Son. धन्यवाद देते हैं आपके एकलौते पुत्र को भेजने के लिए। Thank you that He came to the earth, He died for our sins. धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे पाप के लिए आए, हमारे पाप के लिए मारे गए। And thank you that today we are redeemed because of His sacrifice. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम छुड़ाए गए हैं उनके बलिदान के वजह से। Thank you that today we can rejoice, we can share to the world that you live. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम आनंदित हो सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि आप जीवित हैं। Thank you for the opportunity to give a little from what you have given to us. धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हमारे थोड़े में से हम आपको दे सके। And as we bring it to you this evening hour, we pray, Lord, that you would bless this and use it for your kingdom. और जैसे इस शाम को इस भेंट को आपके पास लाते हैं, हम आपसे मांगते हैं आप इसे आशीष दे और आपके लिए उपयोगी होने दे। And we pray along with this you would take our lives also. और हम प्रार्थना करते हैं इसी के साथ आप हमारे जीवन को भी ले। Help us also to give our best to you. हमें मदद कर ताकि हमारा उत्तम भी हम आपको दे सके। We thank you that you are truly a good God. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच में एक भले परमेश्वर है। We thank you that you've been with us right through this year.
धन्यवाद देते हैं इस साल की शुरुआत से आप हमारे साथ रहे Even during the pandemic, you have been with us. और पैंडेमिक के समय में भी आप हमारे साथ थे। You have blessed us, you have kept us. आपने हमें संभाला, आपने हमें आशीष दिया। And we want to thank you at this moment for all your goodness in our lives. इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सभी भलाइयों के लिए जो हमारे जीवन में आपने दिखाई। We want to thank you for our church. धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के We लिए। thank you for all our members. हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते Thank you हैं। for every blessing that we have received from your hand. धन्यवाद देते हैं सभी आशीषों के लिए जो आपके हाथ से हमें मिला। And we want to pray and ask, Lord, as we celebrate your birth this evening, that you would truly bless us. प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे इस नाताल के दिन को हम मनाते हैं तो आप हमें आशीष दें। And when we commit our church into your hands, we pray, Lord, that you would enable our church to become that which you want us to be. और हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए कि हमारी कलीसिया को प्रभु आप वो बनाए जो आप चाहते हैं बनाना। There are many in this world who are still struggling because of illness. और प्रभु इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी के वजह से अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। There are some within our own congregations who are not well. और हमारी बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं है। So we pray, Lord, for your healing touch for each one of us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके चंगाई का स्पर्श हम सभी के We ऊपर। pray for our nation at this time. इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। We pray for all of the Christians who would be worshiping you this evening. हम प्रार्थना करते हैं सभी क्रिस्तियों के लिए जो आज की शाम आपकी आराधना कर रहे होंगे। We pray and commit the church in India into your hands. हम प्रार्थना करते हैं और भारत के चर्च को आपके हाथ में देते And our हैं। prayer is that, Lord, you would enable the church in India to stand for you. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भारत में चर्च है वो आपके लिए खड़े हो सके। And we pray, Lord, that we would be a true witness for you. और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सच्चे गवाही बने A true witness to the fact that you have redeemed us and you have given us salvation. और वो सच्ची गवाही बने कि आपने हमें छुटकारा दिया है और हमारा उद्धार हुआ है। Thank you now for your presence with us through this service. धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए इस सेवकाई में हमारे साथ। As we prepare our hearts to receive your word, जैसे हमारे हृदय को हम तैयार करते हैं आपके वचन को सुनने। you speak to us, Lord. प्रभु आप हमसे बातें करें। As pastor brings the message, you speak through him. प्रभु जैसे पास्टर वचन लेकर आते हैं आप उनके द्वारा बात करें। Holy Spirit, we pray that you would speak to us, you would teach us this evening. पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाए इस शाम को। Thank you for all that you mean to each one of us. धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जो हम में से हर एक के जीवन में आप कर रहे And हैं। thank you for your presence now with us. धन्यवाद देते हैं अभी आपकी उपस्थिति जो हमारे साथ है Continue to be with us और आप हमारे साथ रहे and bless us again. और हमें फिर से आशीष दे। All this we pray in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Hey, 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 hey. तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, अरे झूमो और नाचो और आवाज उठाओ।
रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे, मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। Yeah. Hey, hey, hey. Praise the Lord. जय मसीह। It's such a joy to bring Christmas Eve message to all of you. और ये बहुत आनंद की बात है कि क्रिसमस के पूर्व संध्या का सुसमाचार हम लेकर We आए have enjoyed all carols in different languages और हमने कैरल्स का आनंद उठाया है अलग अलग भाषाओं में and also children dance. और बच्चों का डांस भी। I sincerely hope that you were not just listening and enjoying, but you were worshiping the Lord. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे लेकिन आप परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। A Christmas Eve, और क्रिसमस की संध्या, पूर्व also संध्या, known as the Vigil of Christmas, और वो उसे क्रिसमस की सतर्कता भी कहा जाता है, is perceived as a culmination of Advent season. और वो आगमन का मौसम का परिणति होता है। Christmas Eve is the night before Christmas Day. और क्रिसमस के पूर्व संध्या वो क्रिसमस के दिन के पहले की संध्या होती है, That is tomorrow. और जो कि कल है, Because it is believed that birth of Christ took place at sometimes in the middle of night on this day. और ऐसे माना जाता है कि जो यीशु मसीह का जन्म है वो मध्य रात्रि में हुआ था। Therefore we decided to celebrate Christmas Eve service. इसलिए हम क्रिसमस की सेवा को मनाते हैं। Of course, in the earlier days we used to have 25th morning service. और शुरुआती दिनों में हम 25 तारीख को सुबह की सेवकाई करते That थे, was when we were meeting at Care Center. और वो जब हम केयर सेंटर में मिलते थे। Although we are not able to gather together in one place, और अब हम एक साथ एक जगह में नहीं आ पाते, but we make most of what is available to us. लेकिन जो भी हमारे पास है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। And the leaders have made all arrangement, और अगुवों ने सभी प्रबंध किया है, and a very complicated, elaborate arrangement they have made. और बहुत ही जटिल व्यवस्था उन्होंने की है। And I appreciate all of them who were involved in preparing for this service. और मैं उन सभी का सराहना करता हूँ जिन्होंने इस सेवकाई को करने के लिए मदद किया I है। always reminded you और मैंने हमेशा आपको ये याद दिलाया on है Christmas Day, क्रिसमस के दिन, on Good Friday Day, और शुभ शुक्रवार को, and on Easter. और जिस दिन प्रभु जी उठने का दिन हम मनाते I हैं। repeatedly say this, और मैं ये हमेशा कहता हूँ that our Christian faith is
compared to a round table with only 3 legs. और जो हमारा क्रिस्ती विश्वास होता है वो गोल टेबल की तरह होता है जिसके 3 पैर होते हैं. Unfortunately, we don't get to see such tables now. और आज के दिनों में हमें वैसा टेबल देखने नहीं You मिलता. remove one leg and the table falls. अगर आप उसका एक पैर निकाल दो तो वो टेबल गिर जाएगा. Similarly, उसी तरह 3 legs of Christian faith are और 3 पैर क्रिस्ती विश्वास के जो in है, incarnation when the Son of God came to this world, और जब यीशु मसीह देहधारी हुए and we celebrate it as Christmas. और उसे हम क्रिसमस करके मनाते हैं. And the day the Lord gave his life on the cross, और वो दिन जब यीशु मसीह ने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया, it was, we believe, on Friday, और हम विश्वास करते हैं कि वो शुक्रवार था, and we celebrate it as Good Friday. और हम उसे शुभ शुक्रवार करके मनाते हैं. And the day the Lord rose again, the resurrection of Christ, we celebrate it as Easter. और जब यीशु मसीह का जी उठने का दिन था उसे हम ईस्टर करके मनाते हैं. All 3 events are very important, और ये तीनों घटनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, equally important. और बराबरी से महत्वपूर्ण है. And we already had the passages of the scripture, 2 texts read to us during worship. और आराधना के दौरान जो वचन पढ़ा गया था, Those are my text for today, और आज का वही मुख्य वचन है, and therefore I'm not going to read it again. इसलिए हम उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे. And there are various factors involved in it और अलग अलग बातें इसमें है that is connected with the birth of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के जन्म से जुड़े हुए हैं. So I have chosen 2 groups, और मैंने 2 झुंड को चुना है and that they were involved in the birth of Jesus. जो यीशु मसीह का जन्म हुआ उसमें उनका भागीदारी थी. Rather, they received the message from heaven that the Christ is born. और उन्होंने स्वर्ग से ये संदेश को प्राप्त किया कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है. First we see that God revealed the birth of Christ. और पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म हुआ है ये बात. The first to a group of shepherds. और सबसे पहला उन्होंने ये बात चरवाहों को कहा. We read the scripture that is Luke chapter 2, 8 to 20. और हमने वचन पढ़ा है लूका 2 अध्याय में. Shepherds represent, and I want to present that, the shepherds represent और जो चरवाह है वो प्रतिनिधि होते हैं the poor, जो गरीब होते हैं the उसके, downtrodden, और जो निचला स्तर के लोग and the होते हैं, marginalized of the society. और जो दलित लोग होते हैं उनके. If Jesus was born in the palace, अगर यीशु मसीह का जन्म महल में होता तो the poor and the common people like you and I, जो गरीब लोग हैं और जो सामान्य लोग हैं आपकी तरह और मेरी तरह, we won't be able to find him in the palace. हम उन्हें उस महल में नहीं पाते. So God in his wisdom तो परमेश्वर अपने ज्ञान में first revealed this great news that his son has been born now to a group of shepherds. इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहला उन्होंने चरवाहे के झुंड को ये बात बताई. Secondly, और दूसरी बात, God is not only God of poor, और परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर वो गरीब के ही नहीं he is है, God of poor and rich alike. और परमेश्वर वो गरीब और वो अमीर के समान है. John 3:16, God so loved the world that embraces all. यूहन्ना 3:16 जैसे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया. So God also revealed the birth of Christ to a rich and powerful, और इसलिए परमेश्वर ने ये एक शुभ संदेश वो अमीरों को भी बताया जो and educated and intellectuals of that day. और जो तभी के ज्ञानी लोग थे उन्हें भी. And so God revealed this mystery to a group of people called Magi. और परमेश्वर ने इस रहस्यमय बात को ज्ञानी लोगों पर प्रकट किया. Magi means wise men. और ज्ञानी लोग ऐसे कहा जाता है. We read that they came from the east. और हम पढ़ते हैं कि वो पूर्व से आए. It is agreed and believed that they came from Persia. और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो पर्शिया से आए. Persia of that day. और तभी उसे पर्शिया कहा जाता Now था. it is in Iran. और अभी उसे ईरान कहा जाता So है. they came from long distance. वो बहुत दूर
से आए थे and they were highly educated, powerful community और वह उच्च स्तर पर पढ़े लिखे लोग और ताकतवर लोग थे and connected to the ruling community. और वो जो जिसका शासन चलता है उनके साथ वो जुड़े हुए थे A ruling community of Persia. और जिसका शासन चलता है पर्शिया में उनके साथ वो जुड़े हुए थे। So the rich and the poor all received the message of birth of Jesus. गरीब और अमीर दोनों ने भी यीशु मसीह के जन्म का संदेश को प्राप्त Because किया God wants all the rich and the poor, helpless and the powerful, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि अमीर हो गरीब हो जो मददगार है उनके लिए भी illiterate and highly educated, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है all to know that He has sent His Son to this world as our Savior. कि सभी के पास ये बात पहुँचे कि उनके जो यीशु मसीह का जन्म हुआ है जो उद्धार करता है। And when the angels revealed this message to the shepherds, और जब स्वर्गदूतों ने ये बात चरवाहों को कहा the angel said, a Savior is born today for you. और स्वर्गदूतों ने कहा कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है तुम्हारे लिए। Now secondly, दूसरी बात, a king was born on that day. एक राजा का जन्म हुआ था उस दिन। When the angels revealed this message to the shepherds, they said the Savior is born. और जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को कहा तो उन्होंने कहा कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। When this was revealed to the Magi, the wise men, and it was revealed that a king is born. और जब ये बात ज्ञानी लोगों को बताई गई तो ऐसा कहा गया कि राजा का जन्म हुआ An है। interesting fact is that और यहाँ पर दिलचस्पी की बात यह है king is never born. कि राजा का जन्म नहीं होता। In the history, we never read a king was born. और इतिहास में हम उसे पढ़ते हैं कि कभी किसी राजा का जन्म नहीं होता। A prince is born, a princess is born, और राजकुमार और राजकुमारियों का जन्म होता है। and at an appropriate time he would be made a king or she would be made queen. और जब समय आता है तब उन्हें राजा या रानी बनाया जाता है। And when the wise men, Magi, came, और जब ज्ञानी लोग आए they followed the star और उन्होंने तारे के पीछे चलते and हुए they आए came from long distance. और वो बहुत दूर से आए When they came to Jerusalem, और जब वो यरूशलेम में पहुंचे they used their logic और उन्होंने अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया because it was revealed to them that a king is born. क्योंकि उन्हें ऐसे बताया गया था कि राजा का जन्म हुआ है। Therefore they went to palace to look for a king. इसलिए वो महल में गए कि वो राजा को देखे And they asked very specifically, और वहां पर उन्होंने पूछा स्पष्ट रूप में where is the born king? कि जो जन्मा हुआ राजा वो कहाँ है। Now that we read in Matthew chapter 2 verse 2. और उसे हमने मत्ती के 2 अध्याय 2 वचन में पढ़ा। Today we followers of Jesus Christ और आज जो हम यीशु मसीह के पीछे चलने know वाले that हैं our Lord Jesus और हम जानते हैं कि यीशु मसीह is our Lord, He is our Savior and He is our King. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, हमारे उद्धारकर्ता है और हमारे राजा है। The Savior and the King, when He was born, He had no place to be born. और जो उद्धार करता है और जो राजा है उसके पास जगह नहीं थी कि वो जन्म ले। And Mary laid Him in the manger. और मरियम ने उसे चरनी में रखा Because there was no place for Him. क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी। Of course today I believe that will not be the case. और आज के दिनों में ऐसा नहीं हो सकता। You and I have given our heart for Him. हमने हमारे हृदय को यीशु मसीह के लिए He दिया has है found place to be born in our life, in our heart. और उन्होंने हमारे जीवन में जन्म लेने की जगह पाई है। He is the born Savior and He is the born King. वो जन्म से ही राजा है और जन्म से ही परमेश्वर है। About 33 years later, और 33 साल पहले and when Pilate condemned Jesus to be crucified, और जब पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दी,
And he ordered epithet about to be written about his head. और उसने About his head. विशेष करके यीशु मसीह के सिर पर लिखने को कहा, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. जो नासरत का यीशु है वो यहूदियों का राजा है। So when he was a born king. और जब वो जन्म पाए तो वो जन्म से ही राजा थे। In the whole history, only he is known as the born king. और पूरे इतिहास में सिर्फ उन्हें ही जन्म से ही राजा माना जाता And when है। he died, he was known as the king again. और जब वो मृत्यु पाए तभी भी उन्हें राजा करके कहा गया। Now, thirdly, we see the purpose of visit by the shepherds और तीसरा and Magi's. और तीसरा हम देखते हैं जब चरवाहे और ज्ञानी लोग यीशु मसीह से मिलने आए। Both groups, the shepherds as well as the Magi's, दोनों भी झुंड जो चरवाहों का और ज्ञानियों का had one single purpose in coming to see the born shepherd, a born savior and born king. उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जब यीशु मसीह को मिलने के लिए आए जो जन्मा हुआ राजा है, That was to worship the born king, the born savior. और ताकि वो जो जन्मा हुआ राजा है, जन्मा हुआ उद्धार करता है, उसकी आराधना कर सके। And we don't read that they came back again and again to see him and to worship. और हम आगे ऐसे नहीं पढ़ते कि वो बार बार आए उसे देखने के लिए और आराधना करने के लिए। Both the groups visited once and had worshipped the Lord only once. और दोनों भी झुंड ने एक ही बार वो यीशु मसीह से मिलने आए और उन्होंने एक ही बार आराधना किया। We have the privilege of worshipping the Lord not once, always and any time. और हम भाग्यशाली है कि हमारे पास अवसर है कि हम यीशु मसीह की आराधना कर सके, सिर्फ एक बार नहीं। When our choir groups, worship group led us in choir singing. जब हमारे स्तुति आराधना के दल ने हमें गीतों में चलाया, It was very beautiful choirs. और बहुत खूबसूरत And जो गीत carols. थे। And I believe that you worship the Lord. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आराधना की परमेश्वर की। Sometimes we get carried away with the music and the atmosphere and we enjoy. और कई बार हम जो गीत चलते हैं और पीछे जो धुन होता है उसी में हम मगन हो जाते हैं। Of course it is good to enjoy. और अच्छी बात होती है जब आप मगन होते हो और आनंद मनाते हो। But we need to take part in worshiping. लेकिन हमें भागीदार होना है आराधना में। So I believe that you had time of worshiping मैं and glorifying the King of Kings and the Lord of Lords. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ये समय लेकर आराधना की जो हमारे राजाओं के राजा है। Let us assess the cost they had to pay for one single worship. हम देखेंगे कि जो दाम उन्होंने चुकाया वो एक आराधना के लिए। Sheep were only the source of their living for shepherds. और जो चरवाहे थे उनके लिए सिर्फ भेड़ ही थी जिनके कारण वो जीवित रहते They थे। guarded their sheep with their lives. और अपना प्राण देकर भी वो उन भेड़ों को बचाते थे। While at night और रात के समय they would keep watch over the sheep. और वो रखवाली करते थे उन भेड़ों की। Because the wild animals would come and attack them, kill them and eat them. क्योंकि जो जंगली जानवर रहते थे वो आकर उन पर हमला करके उन्हें खा जाते। Now shepherds left their sheep. और चरवाहों ने अपने भेड़ों को वहीं छोड़ा। They took a great risk in losing their livelihood. और उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम उठाया कि जिसके कारण वो जीवित थे उसे छोड़ के जाना। They immediately walked a long distance in the biting cold. और वो तुरंत ही वहाँ पर जो ठंडी में वहाँ से चलते हुए गए। Because the angels told them, today in Bethlehem a savior is born to you. क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा कि बेथलेहेम में आज उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है तुम्हारे लिए। And the Magi's had to travel hundreds and hundreds of miles. और जो ज्ञानी लोग थे उन्हें कई माइल चलकर आना था। It must have taken weeks and months for them to reach here. और शायद उन्हें पहुंचने के लिए हफ्ते या महीने लग गए होंगे। And they were researchers, they were scientists of the time. और उस समय के वो खोजबीन करने वाले थे। And they were known
they're doing astronomy. और वो They are तभी researching astronomy, और वो खगोल का के भी शास्त्र देखते थे, and they had to put on hold all their research, और उन जो भी वो खोजबीन करते थे उसे उन्हें रोकना पड़ा, and then they had to set their estate in order, और उनका जो भी धन संपत्ति थी उन्हें उसे रोक कर रखना था and वहाँ they had पर, to make provision for their families. और उन जैसे वो वहाँ पर नहीं थे उनके परिवार के लिए देखभाल के लिए भी उन्हें प्रबंध करना था, Because they would be absent from them for a long time. और लंबे समय तक वो वहाँ पर नहीं रहेंगे And they इसलिए, normally travel with their servants. और वो साधारण रूप से अपने सेवकों के साथ जाते थे, They would take their tents and pack them and put it on the camels. और अपने तंबू लेकर ऊँटों पर डालकर वो जाते थे, And they traveled on camels on the during that time. और उस समय वो ऊँटों पर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। What I'm trying to show you this, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर such रहा a हूँ, long journey costs them a lot of money. और इतना लंबा सफ़र उन्होंने बहुत दाम चुकाया, And they also took risk, और उन्होंने ये भी जोखिम उठाया, leaving back all what they possessed and going away to unknown place for long distance for many days. और जो भी उनकी धन संपत्ति थी उसे वहीं छोड़कर दूसरी जगह चले जाना काफ़ी दिनों के लिए। So we see this, both the groups, the shepherds as like wise men, they paid a heavy cost to come and worship the Lord once. और हम देखते हैं कि इन दोनों झुंडों ने, जो ज्ञानी और जो चरवाहे थे, उन्होंने बहुत दाम चुकाया कि वो आकर एक बार आराधना कर सके। Fourthly, I want to present to you this. और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, Shepherds became first evangelists of the gospel good news in New Testament. और जो चरवाहे थे वो पहला सुसमाचार सुनाने वाले बने। In Luke chapter 2 verse 17 we read, और हम लूका के 2 अध्याय 17वें वचन में ऐसा पढ़ते हैं, to read that. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about the child. इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। This is very interesting thing. और ये बहुत दिलचस्पी की बात है। They were told by the angels. और स्वर्गदूतों के द्वारा उन्हें ऐसा कहा They गया था received the good news. कि उन्हें शुभ संदेश मिला, They believed in the good news. और उन्होंने शुभ संदेश में विश्वास They किया, came all the way and saw the child. और वो लंबा सफर तय करके आए और बच्चे को देखा, And they had an experience of seeing Savior. और उन्होंने जो जन्मा हुआ उद्धार करता है उसे देखने का अनुभव लिया। They did not keep that message to themselves. उन्होंने ये संदेश अपने तक ही नहीं रखा, They went immediately and started spreading the news to others. और वो तुरंत ही जाकर दूसरों को ये बातें बताने लगे, Because they heard what the angel said. क्योंकि उन्होंने सुना जो स्वर्गदूतों ने कहा। They came and saw and they had an experience. वो आए, उन्होंने देखने का अनुभव लिया, And they went around sharing the good news to others. और फिर वहाँ से वो दूसरों को भी शुभ संदेश सुनाते हुए We गए। have seen how these two groups, they took the trouble and they paid the cost to come and see the born child, the born king, born savior. और हम देखते हैं कि इन दोनों झुंडों ने तकलीफ उठाकर वो आए, उन्होंने जो जन्मा हुआ उद्धारकर्ता राजा है उसे देखा, And they worshiped the born king. और उन्होंने जो जन्मा हुआ राजा है उसकी आराधना And the की, shepherds went around spreading that good news. और जो चरवाहे थे वो शुभ संदेश को वहाँ पर प्रचार करते हुए गए। Now, how relevant their actions are to us today? और आज के दिन में उन्होंने जो कार्य किया वो हमारे लिए किस तरीके से अनुरूप है। First, we see that both the groups did not count the cost. और हम देखते हैं कि दोनों भी झुंड ने उन्होंने कितना दाम चुकाया वो उन्होंने नहीं देखा। They paid the cost to go and worship the born child. उन्होंने दाम चुकाया कि वो जाकर उस जो जन्मा हुआ बच्चा है उसकी आराधना How do करें। we consider our worshiping of our Lord Savior and King?
हम किस तरीके से उसे हमारे जीवन में देखते हैं कि हम हमारे राजा की आराधना करें। Did you find it very inconvenience today to gather in particular place and it is an unusual thing and you didn't want to go that place and it was very difficult to take time at this time to come and gather? क्या आपके लिए वो अयोग्य है कि आप उस जगह पर आकर आराधना करें समय पर? And then did you worship the Lord this evening? क्या आपने आज की शाम परमेश्वर की आराधना की? The shepherd heard the message. और जो चरवाहा है उन्होंने संदेश को They सुना believed in the message और उन्होंने विश्वास किया संदेश में, and they came and saw the child. और वो आए और उन्होंने बच्चे को They देखा had an experience. और उनके पास वो अनुभव था They went around sharing the good news. और फिर उन्होंने वो सुसमाचार को सुनाया। What about you and I? आपके और मेरे बारे में क्या? As we celebrate Christmas year after year, जैसे हम क्रिसमस हर साल बनाते हैं, of course it is customary for us to give gifts and receive gifts. और ये हमारे लिए बात है कि हम एक दूसरे को तोहफा दें। And I don't remember in many years anyone had given me Christmas gift. और मुझे याद नहीं कि इतने सालों में किसी ने मुझे क्रिसमस का तोहफा दिया। If I'm right in my thinking, this year one family gave me a Christmas gift. और इस साल एक परिवार ने मुझे क्रिसमस का तोहफा दिया। And so you give your Christmas gift to one another. और आप भी एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट्स देते हैं। And the church leaders have arranged to give you Christmas gift. और जो कलीसिया के अगुवे हैं उन्होंने भी प्रबंध किया है कि आपको क्रिसमस का तोहफा दे। They have worked very hard to make it possible. और उन्होंने बहुत मेहनत की है कि ये संभव हो सके। Many are involved in it. और बहुत से लोग इसमें है। Some have been working very hard to make it possible for you all, everyone to have a gift. और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप तक ये तोहफा पहुंच सके। So on Christmas Day it is customary to give gifts to remind that God has given the best gift to us. और क्रिसमस के दिन हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने भी हमें तोहफा दिया है जो कि यीशु मसीह। Why don't we change that system? तो क्यों ना हम इसे बदले? For a change, और परिवर्तन के लिए why don't we bring a gift to the Lord? क्यों ना हम परमेश्वर को तोहफा दे? Just as the Magi's, the wise men brought expensive gifts and gave to the child. जैसे कि जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने बहुत महंगे तोहफे दिए उस बच्चे को। What best gift we can give to Jesus today? तो यीशु मसीह को हम क्या तोहफा दे सकते हैं आज? Wouldn't it be a wonderful thing that you bring someone and introduce someone to Jesus? क्यों ना किसी एक व्यक्ति को आप यीशु मसीह के पास लेकर आए? And wouldn't it be a wonderful gift to Jesus? क्या वो सबसे अद्भुत तोहफा होगा यीशु मसीह के लिए? As the shepherds went around and shared the good news. जैसे चरवाहे उन्होंने प्रचार किया। Yes, so we can decorate our house. और हम हमारे घरों को सजा सकते हैं। And some people came and decorated my house. कुछ लोग आकर मेरे घर को सजाए। And after my children left, we never decorated our house for Christmas. जब से मेरे बेटियां गई है उसके बाद से हमने कभी हमारे घर को नहीं सजाया क्रिसमस में। And that is good. Decorate the house and keep the good music, carols. और अच्छी बात है कि आप अपने घर को सजाएं और जो गीत है उसे लगाएं। Prepare good food. अच्छा भोजन बनाएं। And we like Christmas food. और हमें जो क्रिसमस का भोजन है वो बहुत पसंद है। And especially the Christmas cake. और खास करके जो क्रिसमस का केक होता है। If you go to bakery and ask for special Christmas cake, you have to order. आप अगर बेकरी में जाके पूछे क्रिसमस केक के लिए तो आपको उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। Order before many days. और कई दिन पूर्व आपको ऑर्डर देना पड़ता है। What is known as Christmas cake, it takes many days to prepare that and is very expensive. और जिसे क्रिसमस केक जो कहा जाता है उसे बनाने के लिए कई दिन लगते हैं और वो बहुत महंगा होता है। So we can have all that rejoicing ourselves on Christmas Day. और हमारे पास ये सारी चीजें हो सकती है कि
हम आनंद मनाएं क्रिसमस के दिन। But wouldn't it be wonderful if you could bring a special gift to the Lord? लेकिन ये अद्भुत होगा कि आप परमेश्वर के लिए खास तोहफा लेकर आए। Just like the shepherds went and shared the good news. जैसे चरवाहे जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। Why don't you go to your neighborhood? Why don't you speak to people you meet at workplace? क्यों ना आप आपके जो बाजू में रहते हैं और जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको आप यीशु मसीह के बारे Or में your बताएं। relatives who don't know the Lord. या फिर जो आपके परिवार के हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। Can you bring one person to the Lord as your Christmas gift to Jesus Christ? क्या आप एक व्यक्ति को प्रभु में ला सकते हैं कि आपकी तरफ से वो यीशु मसीह के लिए तोहफा हो? That's the challenge I want to live with you. और आज मैं ये आपको चुनौती देना चाहता हूँ। And rejoice. आनंद मनाएं। Celebrate Christmas. उत्सव मनाएं क्रिसमस And का। God bless you. और प्रभु आपको आशीष And I दे। take this opportunity to wish all of you और मैं ये संधि लेता हूँ कि मैं आप सभी को विश करूँ। I wish you Merry Christmas आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभेच्छा and Victorious New Year. और विक्टोरियस न्यू ईयर। And for many years we have this tradition of using Victorious New Year. और कई सालों से हम विजयी ही नया वर्ष ऐसे कहते हैं। Because Happy New Year becomes unhappy within few days. और जो हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है वो उदासी में बदल जाता है कुछ दिनों के बाद। And so let us have a victorious New Year with all these restrictions and difficulties we have. तो क्यों ना हम विजयता से ये जो नया वर्ष है उसमें जाए और ये जो तकलीफ का समय है उस पर विजय पाए। Because our Lord is the born King, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो जन्म से ही is the राजा born है Savior. और हमारे जो जन्म से ही वो उद्धार करता है। Shall we pause for a prayer? क्यों ना हम कुछ समय ले प्रार्थना के लिए। Lord Jesus, we want to thank you for the lives of those shepherds and the wise men. प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं जो चरवाहे और ज्ञानियों के जीवन के लिए। After over 2000 years, even today, they present us a challenge, encouragement. और 2000 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी वो हमें चुनौती देते हैं How to worship you. कि हम आपको किस तरीके से आराधना How करें। not to count the cost for your worshiping. हमें दाम नहीं देखना है जो हम चुकाते हैं। And then they gave the expensive gifts. और उन्होंने बहुत महंगे तोहफे दिए। The shepherds went around and sharing the good news with others. और जो चरवाहे थे वो अलग अलग लोगों को आपका Help सुसमाचार us to प्रचार put these किए। lessons into our own life this year Christmas. और हमें मदद करे कि इस साल हम इस क्रिसमस में उस पाठ को जो हम सीखे हैं वो हम लागू कर During सकें। this season before the year end, और इस साल के समाप्त होने से पहले enable everyone to introduce someone to you as their Christmas gift. मदद करे कि हम में से हर एक लोग एक नए व्यक्ति को आप में लेकर Bless आए them and keep them. और आप उन्हें आशीष दे, आप उन्हें संभाले। Ask this mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये सारी दया हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से Amen and मांगते amen. हैं। आमीन और आमीन। Enjoy now. आप आनंद मनाएं। You will be given the gifts now. आपको तोहफे दिए जाएंगे Open the gifts, enjoy it. और उस तोहफे को खोले और उसका आनंद मनाएं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। Why don't we all stand and sing this song, Feliz Navidad? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. जय मसीह कलीसिया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ने आज की जो ये विशेष हमारी जो क्रिसमस की सेवा है उसका आपने आनंद उठाया है। जो वर्शिप टीम ने जो और मेहनत किया है कि हमारे लिए जो कैरल्स के अलग अलग भाषा में जो उन्होंने गीत को बताए, तो हमने जो आज की जो परिस्थिति है कि हम सभी एकत्रित नहीं मिल सकते हैं, मगर फिर भी ये एक इस समय कोशिश किया गया है कि हम सभी कुछ झुंड में, छोटे छोटे झुंड में मिलकर आज हम इस नाताल की सेवा में शामिल हो सकें। और जैसे हमारे वरिष्ठ अगुओं ने बताया अभी कि परमेश्वर ने तो हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है, मगर शालोम की कलीसिया की ओर से भी आप सभी के लिए जो नाताल का जो तोहफ़ा है आपके घर कलीसिया के अगुओं के पास पहुंच चुका है। और हमारे लिए जब क्रिसमस का सेवा होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जब हमें आत्मिक भोजन मिलता है तो हम शारीरिक भोजन का इंतज़ार करते हैं कि अभी आत्मिक भोजन मिलने के बाद हमें शारीरिक भोजन भी मिलेगा। तो भले हम सभी एकत्रित नहीं हुए हैं, मगर आज आप सभी के लिए, आप जहाँ पर भी उपस्थित हैं वहाँ पर आपके लिए क्रिसमस के गिफ्ट के पैकेट्स आपके लिए वहाँ पर आपके अगुओं के पास दिए गए हैं। और जैसे ही ये सेवा ख़त्म होगा तो वो सभी आपको वो दे देंगे। तो जो पैकेट्स हमने जो कलीसिया की ओर से जो बनाए हैं, तो हर एक परिवार के लिए एक एक पैकेट्स बनाया गया है। तो अगर एक परिवार में अगर कोई एक सदस्य है तो उसके लिए अलग पैकेट है, और किसी परिवार में अगर 2 सदस्य या 3 सदस्य है तो उनके लिए उन नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से वो पैकेट्स बनाए गए हैं, ताकि आप सभी को एक फैमिली के रूप में आपको वो क्रिसमस का एक गिफ्ट का पैकेट मिल सके। तो मैं आशा रखता हूँ कि हम सभी ने जो उस पैकेट के लिए जो मेहनत किया है, तो आप सभी उस पैकेट से देखकर आप आनंदित होंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का आनंद हम सभी एक दूसरे के साथ बांटने के लिए सहायता किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो आइए ये समय हम सब अपनी अपनी जगह पर उठ खड़े हो जाएंगे और हम अपनी आँखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के इस शाम की सुंदर सेवा के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी को प्रभु अब तक चलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं विनती करता हूँ पवित्र परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमारे लिए अपना सबसे उत्तम भेंट प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु, उसे हम कभी भूल नहीं सकते प्रभु। और मैं मांगता हूँ प्रभु, जो प्रेम प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रकट किया है, वही प्रेम को प्रभु हम सभी को प्रभु अनुकरण करते हुए प्रभु इस जगत में प्रभु हर एक हमारे भाई बहनों के साथ बांटने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर, मदद कर। आज की इस नाताल की सेवकाई में प्रभु आपने हम सभी को चलाया है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित प्रभु हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके आनंद से भर दे प्रभु। भले प्रभु आज हम तकलीफ से, समस्या से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, मगर हमारे लिए उससे बढ़कर है प्रभु कि आपका प्रभु आनंद जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और उस आनंद को, उस प्रेम को प्रभु सारे लोगों के साथ बांटने के लिए प्रभु आप प्रभु हर एक को सहायता कर, मदद कर। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु विशेष करके मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप ले प्रभु शालोम के हर एक परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ले, आप हर एक परिवार के सदस्य को आप आशीषित कर प्रभु, और आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। मैं शालोम कलीसिया की ओर से आप सभी को नाताल की शुभकामनाएं देता हूं, और यही शुभकामनाएं आप अपने आस पड़ोसियों के साथ, आपके सगे संबंधियों के साथ और आप अपने सभी मित्रों के साथ बांटें और कहें कि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और उसका आनंद वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। धन्यवाद।